Hello everyone, welcome to GS Booster Shot, your daily dose for GS preparations. In our today's lecture, we're going to cover up a very important topic, that is the NDPS Act, which is Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act. This act has been under debate of late because of the various arrests which have been done under this very act in the Bollywood industry. Moreover, this act happens to be important with respect to India's fight on drugs. So, this act has been under criticism for numerous of its provisions. By means of this very lecture, we are going to understand as to why was this act enacted, what are the key provisions of this very act, what are the criticisms with respect to this very act, what is the main authority established under this very act, and what is the state of India's state of drug abuse in India, and what could be the plausible way forward and the suggestions which have been given with respect to amendment of this very act. If there is any slide of this very lecture that is not visible to you, do not take any hesitance, because I have also attached the PDF of this very lecture along with this very video. So, as I've told you that the context has been supplied to us because of the recent arrests in the Bollywood industry. Now, the NDPS court, a special NDPS court in the Aryan Khan case, has rejected his bail application by holding that even while Narcotics Control Bureau did not recover any drugs in his possession, he would not be entitled to bail as he was in conscious possession. So, सबसे पहले conscious possession क्या होता है? आर्यन खान केस के अंदर बेसिकली स्पेशल कोर्ट ने बेल इसलिए डिनाई कर दी by saying that even though the Narcotics Control Bureau की ऑर्गेनाइजेशन है अंडर NDPS एक्ट. सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोई भी आर्यन खान के ऊपर अंडर हिज पोजेशन दे वर नॉट एबल टू फाउंड एनी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और एनी ड्रग. However, the court said that the co-accused, which is Mr. Merchant, he was having this very drug and Mr. Aryan Khan was in conscious possession of this very drug. What is conscious possession? Basically, in order to be convicted under this very act, it is not important that you should be having the possession of the drug. Even if the drug is in the possession of some other individual and you are having control over that very individual, in that very manner, you would be under conscious possession of the drug. For example, if one of my friend is carrying the drug and he is going to dispose of or use that drug as per my instructions, then I would be under the conscious possession of that very drug. Now, let us see how does India's drug abuse landscape look today. So, according to Ministry of Social Justice and Empowerment, today there are about 70 million drug addicts in the country. Now, different drugs are prevalent in different states, and as per records, about 1.62% of world's seizure of drugs have taken place in India. So, as per our records, there are about 10 suicides on a daily basis because of drug or alcohol abuse. Maharashtra ranks pretty high in this very chart. Also, the proximity to largest basically heroin producing areas, that is the Golden Triangle and Golden Crescent, about which I have talked in my earlier lectures as well, is also one of the main reasons for drug abuse, majorly in border areas of Punjab and Manipur. Lastly, India is also a destination for drugs and also a transit route, and India has been impacted also by narco-terrorism as a result of cross-border smuggling. So, this is how the drug abuse landscape of India looks like. There are a number of drug addicts in the country. We are lying between two of the most largest producing heroin areas of the world. We are also a destination, we are also a transit route. There is large-scale drug abuse which leads to approximately 10 suicides per day. However, remember, this abuse also includes abuse of alcohol. अब हम देखते हैं ड्रग्स को लेके
लेजिस्लेशन क्या रहा है हमारी कंट्री के अंदर। यहां पे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट जो कोई रेगुलेशन आई विद रिस्पेक्ट टू अब्यूज ऑफ ड्रग्स और यूज ऑफ ड्रग्स, इट वाज द ओपियम एक्ट ऑफ 1887 अमेंडेड बाय ओपियम एक्ट ऑफ 1878 एंड द डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। हाउएवर इन एक्ट्स के अंदर जो पनिशमेंट्स दी गई या फिर जो अब्यूज की क्वांटिटी दी गई वो काफी हद तक लिबरल थी। सो मेजरली अंटिल 1985 जब तक एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं हुआ तब तक इस कंट्री के अंदर बेसिकली देयर वाज नो लॉ प्रेवलेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ड्रग्स सच एज नेचुरल ड्रग्स, हशीश, कैनबिस। सो अथर्व वेदा के अंदर भी रिक्रिएशनल यूज बताया गया है with respect to this very drug. So there was actually, it was very common कि cannabis हमारी कंट्री के अंदर यूज हो रही थी, that is hashish, marijuana, bhang etc. were sold legally in the country. However 1961 के अराउंड अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज के इसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करी एंड देयर वर वेरियस ट्रीटीज इन द वर्ल्ड. For about 25 years, from 1961 to 1985, Indian government was resisting towards imposing such kind of regulation in the country. However, because of certain international pressure, the Rajiv Gandhi government brought in the NDPS Act, basically ratifying numerous treaties with respect to drug abuse, such as Single Convention on Narcotics Drugs, Convention on Psychotropic Substances, the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. So, drug abuse is a huge socio-economic problem as well, and government is taking several measures to reduce drug demand and promote rehabilitation of addicts in the society today. यहाँ पे एक important organization का जो plan आता है या फिर एक National Action Plan for Drug Demand Reduction, basically ये कंट्री का हमारा एक प्लान है टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ डिमांड एंड यूज ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री. नाउ व्हाट इज एनडीपीएस एक्ट? सो बेसिकली एनडीपीएस एक्ट इज द की एक्ट व्हिच प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टिवेशन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कंजम्पशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स or psychotropic substances. Enacted in 1985, this act has been amended till today by 3 times in 1988, 2001 and 2014. अब इस एक्ट के तहत बेसिकली नार्कोटिक सब्सटेंसेस जैसे कि कोका लीव्स, कैनबिस, ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बेसिकली डील करते हैं किसी भी तरीके की सिंथेटिक या केमिकल प्रिपरेशंस जो कि प्रोटेक्टेड है बाय साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कन्वेंशन ऑफ 1971. ये सभी चीजें बैन कर दी गई विद रिस्पेक्ट टू यूसेज. नाउ अ पॉपुलर क्वेश्चन दैट जनरली is asked as to what is the difference between narcotic and psychotropic substances. So basically जो psychotropic substances होते हैं वो आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं and it helps you to lose consciousness, whereas जो narcotics होते हैं ये आपको basically muscular relaxation में काम करते हैं and it also leads to reduction or elimination of sensitivity. However, psychotropic substances का basically आपके सीधा माइंड के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है. सो पेनल्टीज क्या हैं इस एक्ट के अंदर? नंबर 1, इस एक्ट के अंदर जो सभी ऑफेंसेस हैं वह है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं. देयरफॉर सिर्फ जज ही बेल दे सकता है, दैट टू अपॉन एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस वेरी एक्ट. एंड सभी इसके जो प्रोविजंस के अंदर जो भी बेसिकली ऑफेंसेस है, दे अट्रैक्ट जेल टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 20 years and fine depending upon the crime. Under this very act, abetment, criminal conspiracy and even attempts to commit an offense, किसी को प्रमोट करना या conspire करना कहीं की ट्रेडिंग with respect to these substances, या फिर एक attempt to commit any offense
would attract the same punishment as the offense itself. Then preparation to commit an offense also attracts half penalty. So यहां पे आप देखिए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तक ऑफेंस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर करने के लिए भी आपको हाफ पेनल्टी मिलेगी. रिपीट ऑफेंसेस के अंदर आपको 1.5 टाइम्स जो पेनल्टी ओरिजिनल पेनल्टी है उसकी पेनल्टी मिल सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो गो अप टू एज डेथ पेनल्टी. सो पनिशमेंट इसके अंदर कितनी होएगी, ग्रेविटी क्या होएगी, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम यू. यहां पे 3 कैटेगरीज के अंदर ड्रग्स डिवाइडेड है. पहली है स्मॉल क्वांटिटी, फिर लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, एंड देन देयर इज कमर्शियल क्वांटिटी. इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अंदर सभी ड्रग्स की वेरियस क्वांटिटीज मेंशन्ड है, एंड जिसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है. नाउ एनसीबी क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. बेसिकली नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल 47. सो यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि सरकार बेसिकली कानून लाने के लिए पावर कहां से ले रही है. दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दैट इज अंडर आर्टिकल 47. सो आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 ये कहता है that the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drugs injurious to health. So India became signatory to the Single Convention of Narcotic Drugs 1961, and इस कन्वेंशन के तहत हमने NDPS एक्ट लागू किया. सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर बेसिकली सेंटर लिस्ट के अंदर फॉल करता है ये सब्जेक्ट with respect to control of psychotropic substances and drugs. And as I've said, the responsibility of drug abuse control, which is a central function, is carried out by NCB, that is Narcotic Control Bureau. ये establish हुआ NDPS Act के अंदर as a nodal agency, and ये coordinate करता है among various ministries, department, organizations, and even with state police in order to basically enact this very and execute NDPS Act. Now NDPS Act के अंदर 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी. ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एंड जनरली प्रीलिम्स के टाइम पे मे भी पूछी जा सकती है. सो इस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ ये कि जो सेक्शन 27A है NDPS एक्ट का, वह एक तरीके से इनएप्लीकेबल हो गया. ये त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेसिकली इसको पॉइंट आउट किया. सो सेक्शन 27 बेसिकली पनिशमेंट प्रोवाइड करता है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी ना किसी तरीके से हार्बर करते हैं, जो लोग NDPS एक्ट के तहत क्राइम करने वाले हैं, या फिर उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं. सो एज पर दिस वेरी सेक्शन, कोई भी इंडिविजुअल जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज 8A के अंदर जो सब क्लॉजेज है 1 to 5, इसमें जो सारे क्राइम मेंशन्ड है, अगर उसके अंदर हेल्प करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी फाइंड एज वेल एज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 years. हाउएवर 2014 के अमेंडमेंट ने बेसिकली ये जो सब क्लॉज है वगैरह इसको खत्म करके एक दूसरा शेड्यूल में डाल दिया, एंड इन दिस वेरी मैनर हमारा बेसिकली 27 बेसिकली पनिशमेंट कहां किन रिस्पेक्ट में देता है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 8A सब सेक्शन 1 to 5. जब ये रहे ही नहीं एक्ट के अंदर तो आपको इसके तहत पनिशमेंट कैसे मिल सकती है? ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि सर कोर्ट होलिस्टिकली देख ले एक्ट को एंड बेसिकली पनिशमेंट दे दे, लेकिन कोर्ट इस चीज को नहीं मान सकता. व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो इंडिविजुअल कैन एक्चुअली बी रेट्रोस्पेक्टिवली कन्विक्टेड फॉर एन क्रिमिनल ऑफेंस. बेसिकली जिस टाइम पे यदि क्राइम है, कोई एक्शन, इफ इट इज अ क्राइम, then only that individual can be convicted with respect to it. Retrospectively आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने क्राइम आज किया है, कल मैं कानून लेके आऊंगा कि पीछे से
जिसने ये क्राइम किया है उसको हम पनिशमेंट देंगे। सो यहाँ पे आर्टिकल 20 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा सेक्शन था जिसके अंदर इनफेक्टिव हो गया, जो इनफेक्टिव हो गया ड्यू टू अमेंडमेंट ऑफ 2014। सो दिस इज अ वेरी बिग लेजिस्लेटिव बेसिकली lacuna that happened। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म इस एक्ट का क्या है। सबसे पहले मेंजरिया या फिर क्रिमिनल इंटेंशन। जो एनडीपीएस एक्ट है, इट डिस्पेंसेस विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी एंड सेक्शन 35 डायरेक्ट्स द कोर्ट to presume the existence of culpable state of all offenses under the act। Now, criminal cases के अंदर and criminal jurisprudence के अंदर basically system होता है that an individual is to be assumed innocent until proven guilty। However, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे presume किया जाएगा कि individual का culpable बेसिकली माइंड था, मेंटल स्टेट थी, अनटिल एंड अनलेस वह इंडिविजुअल इसे डिस्प्रूव कर दे। सो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया गया है। अदरवाइज बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा स्टेट के ऊपर होता है, आपके ऊपर फिक्स करना कि दैट यू आर कल्पेबल, दैट यू आर रॉन्ग। बिसाइड्स दिस, Section 54 says that it is to be presumed that a person has committed an offense under the act if he fails to account satisfactorily for the possession of any narcotic drug or psychotropic substances or any other incriminating article। For example, किसी ने आपके बैग के अंदर स्लिप कर दिया कोई भी ड्रग जब आप बस में जा रहे हैं, so that अगर कोई पकड़ने के लिए आएगा तो आपका बैग चेक होएगा ना, आप फंसेंगे। यदि वह इंडिविजुअल अच्छी तरीके से ये नहीं समझा पाया कि कैसे उसके पास ये ड्रग्स आई, तब तक वह इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल वुड बी गिल्टी। नाउ सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू decoys and entrapments। with respect to NDPS Act and immoral traffic prevention act, ये दो एक ऐसे लेजिस्लेशन है जहां पे पुलिस एक मॉडस ऑपरेंडी यूज करती है ऑफ डीकॉय। जैसे कि पुलिस अपने आप ही आपके पास कस्टमर भेज देगी या फिर अपने आप ही आपके पास डीलर को भेज देगी एंड ये कहेगी कि प्लीज आप मेरे से ये चीज खरीद लीजिए। आप जैसे ही खरीदेंगे उस चीज को, आप इंट्रैप हो गए एंड आपको पकड़ लिया जाएगा बिकॉज ऑफ पोजेशन ऑफ दीज ड्रग्स। नाउ एंड द सेम हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। सो इसके अंदर एक इंडिविजुअल को बेसिकली जो लॉलीपॉप है वो पुलिस खुद ही देती है एंड फिर उसे पकड़ लेती है। सो ये प्रैक्टिस ऑल्दो इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद रिस्पेक्ट टू अदर लॉज, जैसे थेफ्ट के केस के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिटेड है बाय सीआरपीसी। हाउएवर, because of the nature of these very offenses and the social character which has been given to it, the immoral character given to it, ये ऐसी practices या methodologies basically courts, prosecution भी accept कर लेता है। So investigative agencies इसे apply भी करती है, prosecution and courts इसे मान भी लेता है। Then with respect to denial of bail, सो एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो बेल के रिलेटेड प्रोविजंस है दैट आर अकिन टू एक्ट्स सच एज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1987 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली कितने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू बेल। जब बेल की बात होती है तो जो सेक्शन 37 बेल के बारे में बात करता है वह शुरुआत ही ऐसे करता है जैसे कि नो कोर्ट शैल प्रोवाइड the individual with bail unless and until। so basically कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा दी गई हैं एंड एक शुरुआत में ही ये प्रिज्यूम किया गया है, ऑब्लिगेशन रखी गई है कि आपको बेल नहीं देनी until and unless ये दो बातें सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी दो बातें? कि कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो कि इस इंडिविजुअल ने क्राइम करा ही नहीं है एंड सेकेंड चीज कि ये इंडिविजुअल भागेगा ही नहीं। सो लार्जली जो कोर्ट की प्रैक्टिस रही है एंड ये जो प्रोविजन है इसकी वर्डिंग इज वेरी मच सिमिलर टू टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। सो कोर्ट का जो इंक्लिनेशन रहता है इसके अंदर वो रहता है टुवर्ड्स डिनायल ऑफ बेल ओनली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट lacuna that there exists in this very entire act
is with respect to recreational users and victimless crime. So there are many instances when people are actually, they are first time users also, they are recreational users also, and those might be people जो किसी और को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ खुद ही उसे यूज कर रहे हैं. एंड देयरफॉर जब आप खुद भी यूज कर रहे हैं, क्राइम के अंदर क्या होता है, जब आप किसी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई उसे इंजरी पहुंचाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को या उसके पर्सन को, वेराज इसके अंदर किसी इंडिविजुअल को इंजरी नहीं पहुंचाई जा रही अगर आप खुद में कंज्यूम करते हुए पाया गया. सो ये एक विक्टिमलाइज क्राइम होएगा एंड इसके अंदर मुझे कंज्यूम करने के लिए ही पनिशमेंट दी जाएगी. बेसिकली इस तरीके से ये एक स्टैट्यूटरी क्राइम हो गया, एक नेचुरल क्राइम नहीं हुआ. एंड देन देयर आर रिक्रिएशनल यूजर्स, कि रिक्रिएशन यूज के लिए ली तभी भी अंदर जाऊंगा. हाउएवर अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो इस एक्ट के तहत अगर ड्रग एडिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए मान जाए तो उसे बेसिकली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. सो दिस एक्ट fails to take into account first time users and recreational users. Premise कहां से आती है इस चीज की? बेसिकली एक इंग्लिश मैक्सिम है दैट इज कॉम्पस मेंटस, मीनिंग हैविंग कंट्रोल ऑफ वंस माइंड. जब इसके आगे नॉन लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल का अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, एंड इसलिए प्रिज्यूम किया जाता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर ये कंट्रोल डालने की. एंड इसके तहत वी हैव टू सी दैट दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज अ वाइस, एंड ये अगर सब्जेक्टिव टर्म्स में स्टेट किसी भी चीज को वाइस मान सकती है एंड आपके ऊपर किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशंस लगा सकती है. देयरफॉर देयर इज नीड फॉर सीरियस रिव्यू ऑफ दिस वेरी एक्ट, एंड जरूरत है कि इसके ऊपर एक ओपन डिबेट करी जाए कि किस तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने भी अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड किया है कि जो स्मॉल क्वांटिटीज ड्रग्स जब पाई जाती हैं उसे डिक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए उसका पोजेशन, एंड इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वह एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा सकें एंड अपनी बेसिकली जेल टर्म को अवॉइड करने के लिए इफ दे आर कॉट विद स्मॉल क्वांटिटीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस अदर मेजर्स भी लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ ड्रग्स. इसके अंदर एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया with respect to susceptible districts जहां पे सबसे ज्यादा एडिक्ट्स थे वहां पे. Then सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन को लॉन्च किया, एंड ये चल रहा है हमारा ये वाला फ्रॉम 2018 टू 2025. देन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन 2016, एंड नेशनल फंड फॉर ड्रग abuse control of drug abuse भी लॉन्च किया गया है so as to fund efforts towards rehabilitation. So this is all with respect to today's lecture. Should you have any doubt, feel free to put your queries in the comment section. I'd be more than happy to reply to them. Thank you and have a nice day.